So, Dhruti, scalar product. We had done a bit of the background last time. So, in vectors, you'll have two kind of products. One would be the scalar product. The other would be the vector product. So, scalar product, how it is written? It is written like this: A dot B, A vector dot B vector. So that is why it is called dot product also. Vector product is A cross B. So at times it is called cross product also. Any doubt till here? No, sir. There are few things that we can understand even if we don't know the details of this. So the first thing that you need to remember is that in scalar product, when you take two vectors. So for example, last time we had discussed that if I take a force vector and I take a displacement vector, force vector, displacement vector, I do a dot product, the answer that I get, which is work, this answer is a scalar quantity. Have I made myself clear? भाई सीधी समझ आया? जी समझ. So in scalar product, Dhruti, you will take a vector, you will take another vector, you will do some mathematical manipulation that we will understand. We will understand the formula, but what you need to understand very clearly is कि scalar product का जो result होता है, whatever the result of a scalar product is, it is a vector quantity. Dhruti, are we clear? Vector or scalar? I'm sorry, is a scalar quantity. ये Okay. So ये चीज हमें बहुत क्लियर होनी चाहिए कि कभी भी मैं अगर स्केलर कभी भी मैं स्केलर प्रोडक्ट कर रहा हूं, कभी भी मैं स्केलर प्रोडक्ट कर रहा हूं, सो आई वुड हैव अ वेक्टर ए, सम रैंडम वेक्टर ए, देयर वुड बी अनदर वेक्टर बी, जो भी आपका रिजल्ट आएगा दैट वुड बी अ स्केलर क्वांटिटी. What is a scalar quantity? Scalar quantity is that it would just be a number. So for example 27 is a number. Have I made myself clear, Dhruti? Yes. तो कोई भी आप, you are experienced enough now to understand that this is 2i plus 3j minus k. This is one vector. अभी ये वेक्टर आपने लिया and then you take another vector 3i minus j plus k. अब इन दोनों का आपने डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि मैंने यहाँ डॉट लगाया तो डॉट प्रोडक्ट भी इसको बोल दिया जाता है. So you do I'll tell you the formula, don't worry about the formula, but what I'm trying to tell you is कि जो भी आंसर आना चाहिए that should be some number. वो एक नंबर होगा. It can't be another vector. Have I made myself clear? Yes. तो स्केलर प्रोडक्ट का आंसर कभी वेक्टर नहीं होगा, हमेशा ना एक नंबर आएगा. And that vector, that number implies that it is a scalar quantity. So for example in our case, if I take this force vector and I do a dot product, मैं displacement के साथ dot product करता हूं, तो F dot D, ये work जो बनेगा, work is a scalar quantity. भाई से भी समझ आ गया? जी. Even before we go to the nitty-gritty, we should understand this. अभी वेक्टर प्रोडक्ट पे आएंगे. वेक्टर प्रोडक्ट में what we should understand is that we are taking a vector product. So let us assume, हमें quantities का पता नहीं, but just assume कीजिए, this is some vector, this is another vector. अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, you will always get another vector. So what I'm trying to tell you is that if there is a vector A and I do a cross product with vector B, the answer would always be a vector quantity. Ms. Dhruti, are we clear? Yes. फिर like dot product में what exactly happens in dot product? Is it are both the terms like scalar ki vector? Yeah, that is a good question. That equation, yeah. Yeah, that is a good question. देखिए, one thing that you need to remember is that आप vector products कर रहे हैं, vector products. तो कहने का मतलब, that is why your answer is good. Always remember, this would be a vector, but the answer would be a scalar. Vector quantity में, this would be a vector, and the answer would be a vector. Have I answered your correctly? Yes. तो आपका क्वेश्चन बहुत सुंदर है कि आप किसका प्रोडक्ट करेंगे. ये याद रखिए कि जब आप प्रोडक्ट लेंगे, वो प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा दो वेक्टर्स ही लेंगे, बट वो वेक्टर्स को लेके आप डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं. स्केलर ऐसे मैंने क्वांटिटी ले दिया, वेक्टर प्रोडक्ट लिख देता हूं, प्रोडक्ट. आप जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो ऑपरेशन दो वेक्टर्स पे कर रहे हैं. एक ऑपरेशन में जो आंसर है वो स्केलर आता है,
और दूसरे ऑपरेशन में जो आंसर है वो वेक्टर आता है. आर वी क्लियर टिल हियर? Yes. तो अगर मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने गलती से आप भूल गए, कंफ्यूजन होगी, तो आपने स्केलर प्रोडक्ट किया और आपका आंसर वेक्टर आ गया, तो आप गलत कर रहे हैं. उसी तरह वेक्टर प्रोडक्ट किया और वेक्टर प्रोडक्ट में आपका सिर्फ एक नंबर आ रहा है 25, तो आप वहीं गलती कर रहे हैं. मेरी बात समझ आ गई? हाँ. अब अनदर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, वो भी आपको समझ आ जाएगा, थोड़ी देर में वो भी समझ आना शुरू हो जाएगा. सो फॉर एग्जाम्पल वर्क है. अब जो वर्क है वो स्केलर है, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि ये जो स्केलर क्वांटिटी है ये जहां से भी आई होगी, अगर ये वेक्टर से आई है, फिजिक्स में अगर ये वेक्टर से निकली है, तो देयर वुड बी सम वेक्टर एंड देयर वुड बी अनदर वेक्टर. ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हुआ होगा. उसी तरह इफ आई से दैट टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका ये जो डिराइव हुई होगी वो वेक्टर प्रोडक्ट से डिराइव हुई होगी, ये स्केलर प्रोडक्ट से डिराइव नहीं हुई होगी. एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर? Yes. Now, before I go further, because you might have this confusion, in this lecture we will be focusing only on the scalar product. So don't worry, vector product हम नहीं करने वाले. But there might be a doubt in your brain कि only this is what we will be focusing on. But there might be a doubt in your brain कि यार ये जो torque है, इसको tau, Greek symbol tau है, और usually इसको torque के लिए use किया जाता है. Now I'll just spend only a minute on this because मेरा lecture torque के बारे में नहीं है. But I just want to tell you this कि ये टॉर्क होता क्या है. ये आपने क्लास 10th में किया था. इफ रिमेंबर, दिस वाज अ डोर, ये हिंज था, ठीक है. एंड इफ यू रिमेंबर कि आप अगर ये हैंडल है, सो इफ यू रिमेंबर देयर इज समथिंग दैट यू डिड इन क्लास 10th आईसीसी फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आपने ये किया था कि ये यहां पर फोर्स लगेगी एंड दिस वुड बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द हिंज. डू यू रिमेंबर दिस? कि भूल गए? Wait. Yes. I remember. This is also called moment of force. This was ICSE Physics Chapter 1 and this was defined as a force into perpendicular distance. याद आया? इसका एक और भाई भी आपने किया था. Again, if you remember, तो ठीक है, चलेगा. नहीं याद तो भी चलेगा. Then there was this moment. Moment में there were parallel forces. एक फोर्स ये थी, दूसरी फोर्स ये थी. So movement को डिफाइन करते हैं फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. डू यू रिमेंबर? Yeah. तो इवन इफ यू डोंट रिमेंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई विल सेंड यू द स्कैन, बिकॉज जब हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो आई सेंड यू द स्कैन ऑफ दैट क्लास 10th का चैप्टर, क्लास 10th ICSE सेलिना का पेजेस, सो दैट जब हम वेक्टर प्रोडक्ट डिस्कस करें तो आपको याद हो कि ये वेक्टर क्वांटिटी जो आप क्लास 10th में आपने की हुई है वो आपको याद रहे. आर वी क्लियर टिल हियर? Yeah. ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि जो स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कैसे लिया जाता है. ओके, सो द इजीएस्ट एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इज वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डी. अब आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल कैसे ये लिया जाता है एंड देन विल डू सम थोड़े से बेसिक न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद देन विल स्टार्ट डिस्कसिंग द डिटेल्स ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट. सो फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव अ वेक्टर फोर्स 3i प्लस जे माइनस के और मेरे पास दूसरा वेक्टर है डी, ये है i माइनस जे प्लस के, ठीक है. तो ये जो लिखा हुआ है, इसको करने के दो मेथड है. एक जो फॉर्मूला यूज होता है वो फॉर्मूला यूज होता है एफ टी कॉस थीटा. इसका मतलब ये हुआ कि you take the magnitude of force, you take the magnitude of d and you multiply it with the angle, cos of the angle between these two. Have I made myself clear? Yes. वैसे भी समझ आया? जी. There is another way in which the dot product. I'll keep saying dot or scalar. Don't mind. कभी मैं dot बोलता रहूँगा, कभी scalar बोलता रहूँगा. आप you have to understand they are one and the same thing. Now this is the first formula. Then there is another formula. There is a second formula. Second formula में ऐसा करते हैं. And of course, we'll do examples and you will understand कि यार ये first formula कब use करना है और second formula कब use करना है. That you will understand. Don't worry. आज का lecture में we'll be doing a lot of practice, so don't worry about it. The second formula is that I take this f dot d और मुझे सिर्फ ये करना है
तो ये वाले 3 को ये वाले 1 से मल्टीप्लाई करना है, ये 1 को ये -1 से मल्टीप्लाई करना है, ये -1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है. I'll show you how. So 3 into 1 is 3, 1 into -1 is -1, -1 into 1 is 1. Dhruti, have I made myself clear? Yes. तो आंसर क्या हो जाएगा 3. और क्योंकि ये फोर्स इंटू डिस्टेंस है, देखिए नंबर आ गया 3. और ये जो 3 है इसमें आपको क्या करना है, क्योंकि वर्क है तो इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, जूल. हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? A question is, sir, so we're supposed to multiply the, no, I am not understanding how you solve it. Yeah, don't worry. I'll be solving a lot of examples. Don't worry about it. Okay. Okay. अभी केसेस देखना शुरू करते हैं. So for example, I am given a case. I am given a case like this कि मेरे पास ये बॉल है, ये ब्लॉक ऑफ वुड है, इस पे ये फोर्स लग रही है यहाँ पर 5 न्यूटन की, एंड ये यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट इसकी होने वाली है वो होने वाली है 5 मीटर. हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? एनी डाउट क्लियर? No. ओके. तो इसमें यू नो दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट द वर्क. नाउ यू अंडरस्टैंड दैट वर्क इज एफ डॉट डी, और एफ डॉट डी का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, मैग्नीट्यूड ऑफ डी एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू. एक फॉर्मूला तो सर ने ये बताया था, और दूसरा फॉर्मूला बताया था कि यार ऐसा करना कि अगर वेक्टर फॉर्म में दिया होगा तो आई का नंबर आई के नंबर से, जे का नंबर जे के नंबर से, के का नंबर के नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, और जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा. नाउ यू गाइस आर इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये वाला जो केस है, ये वाला जो केस है जिसमें यहां पर मैग्नीट्यूड दिए जा रहे हैं फोर्स के, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड दिया जा रहा है. ऑफ कोर्स यू विल हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला ओनली. सो यू विल से 5 multiplied by 5 multiplied by cos of the angle between the force and the displacement. Dhruti, have I made myself clear? Yeah. हाँ, एक क्वेश्चन है कि if work is supposed to be a scalar quantity, then why are we taking considering the angle? Yeah, again beautiful question. आप ये जो cos 60 है, इसका cos 60 की जो वैल्यू आएगी वो एक नंबर ही आएगा. Have I made myself clear? Okay, sir. तो it would be a number into a number into a number which will be a number which is a scalar quantity. Have I made myself clear? Correct. And, you know, if I go deeper into your problem, इस जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा उसका आंसर लास्ट लेक्चर की डिस्कशन है. देखिए, दिस इज अ फोर्स एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. ये सारा जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, दे आर इन द सेम डायरेक्शन. सारा फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे जा रहा है, बट जब वो एंगल पे है, जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट की एंगल पे है, तो फोर्स का पूरा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की साइड में नहीं जा रहा. एफ का सिर्फ कॉस थीटा कंपोनेंट ये बाजू जा रहा है, और जो एफ साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट, एफ साइन थीटा कंपोनेंट है वो तो वेस्ट हो रहा है. मेरी बात नहीं समझ आ रही? Yes. I'll give you an example. Let me give you another example. So for example, आपके Zoom days मतलब जब आपका कोविड के टाइम आपकी Zoom पे क्लासेस होती थी. तो यू रिमेंबर स्कूल क्लासेस? Yes. अभी आपके इस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स थे कि अगर टीचर इस साइड पढ़ा रही है तो स्टूडेंट का पूरा फोकस इसी साइड होता था. हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? Correct. बट मोस्ट ऑफ द क्लास के साथ यार ऐसा तो होता नहीं था. जो टीचर है वो ये बाजू पढ़ाती थी और जो स्टूडेंट है वो ये बाजू देख रहा होता था. हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? हाँ, करेक्ट. अभी स्टूडेंट ने जूम की क्लास भी खोली हुई है और लैपटॉप पे कुछ 2-3 एप्लीकेशंस खोले हुए हैं और मोबाइल भी चेक कर रहा है, तो उसका पूरा फोकस थोड़ी है टीचर की तरफ. उसका तो देयर इज ओनली अ पार्ट फोकस. ये वाला जो पार्ट है ये टीचर की तरफ है, ये वाला जो पार्ट है ये तो मोबाइल की तरफ या एप्लीकेशंस की तरफ, उसकी तरफ है. हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? यस. तो यहाँ पर ये स्टूडेंट और टीचर जब दोनों एक साइड पे हैं तो उसके मार्क्स ज्यादा आएंगे, और जो स्टूडेंट अपना जूम देख रहा है, 2-3 एप्लीकेशन खोल के रखा है, उसका तो पूरा का ध्यान है ही नहीं ना, उसका सिर्फ ओनली पार्ट इज टुवर्ड्स दिस साइड. हैव आई मेड माय सेल्फ क्लियर? तो आपको समझने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ कॉस थीटा डी. इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स का वो वाला कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट की साइड पे है सिर्फ वही काम कर रहा है. तो ये जो 5 न्यूटन है इसका ये वाला जो कंपोनेंट है, मतलब 5 cos 60 सिर्फ यही काम कर रहा है. इसका जो 5 sin 60 वाला कंपोनेंट है वो तो वेस्ट जा रहा है. हैव आई मेड माय सेल्फ क्लियर? यस. आपको समझ आया? ठीक है, नहीं समझ आया तो भी चलेगा, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है.
But the only thing, Yeah, the only way of understanding is कि ये वेक्टर A है and there is another vector B. अभी how you have to understand this is कि A का ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि A को आप ब्रेक कर सकते हैं ना यार, मैं आपको वेक्टर में हमने काफी प्रैक्टिस की है रेजोल्यूशन हाँ हाँ तो A का सिर्फ cos थीटा वाला फंक्शन ये वाला, ये A cos थीटा वाला कंपोनेंट सिर्फ B की डायरेक्शन में है, तो डॉट प्रोडक्ट में आप सिर्फ A cos थीटा इनटू B करते हैं, ये जो A sin थीटा है ये वेस्ट जाता है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है भाई, से भी समझ आ रहा है जी सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ डॉट प्रोडक्ट. Is Ruti any doubt till here? no sir. Okay. तो ये ऐसी सिचुएशन थी जिसमें फर्स्ट फॉर्मूला यूज हुआ था. Have I made myself clear? Yes. Okay. तो okay. I'm just looking for a good example. I'm just looking for a good example so that I think ये एग्जांपल से आपको अच्छा समझ आएगा. You will get a real life flavor of why dot product is used. So ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी आपको, ठीक है? Okay. So let us try to understand. Let us try to understand question number 8. Under a force of this Newton, a body of mass 5 kg is displaced from a position this to position this. Calculate the work done. Ms. Ruti, should I repeat? No sir, it's okay, I've understood. तो फिर से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. देन यू विल अंडरस्टैंड कि जो सेकंड फॉर्मूला है वो कब यूज किया जाता है. आपको पहला फॉर्मूला तो आपको समझ आ गया होगा. अब हम समझते हैं कि सेकंड फॉर्मूला कब यूज किया जाता है. तो देयर इज सम फोर्स जिसका ये वेक्टर है. A body of mass, this is the mass, is displaced from a position. तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी और फिर ये इसकी फाइनल पोजीशन है. सो ये जो इनिशियल पोजीशन है, दिस इज गिवन बाय दिस वेक्टर एंड द फाइनल इज गिवन बाय दिस, एंड दिस इनिशियल इज 6i प्लस 5j माइनस 3k और जो फाइनल है वो है 10i माइनस 2j प्लस 7k. और कोई फोर्स लगी होगी यार, लेट अस अज्यूम. मेरे पास एग्जैक्ट डायरेक्शन तो है नहीं, तो मैं ऐसे अज्यूम कर लेता हूँ कि ये एक ऐसी फोर्स लगी है इस पे, जो फोर्स है दैट इज 10i माइनस 3j प्लस 6k. हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? मिस रुति, हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? yes sir. So a force of 4i plus j plus 3k Newton acts on a particle and displaces it through a displacement of this meter. Calculate the work done by the force. Now, when we look at the dot product formulas that we have, this is the first formula that we have, that F magnitude of force into magnitude of displacement into cos theta. Have I made myself clear, Ruti? Yes. अभी अगर मैं ये फर्स्ट फॉर्मूला लगाने की कोशिश करता हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन. सो दिस इज माय फोर्स. आई कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स. वैसे भी याद है वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं? डू यू रिमेंबर? Vector का magnitude Dhruti, do you remember? Was it this not sure if this is correct, yeah, but absolutely. उसका जो vector form है, you just have to add it up and then find the square root, I think. A vector whole square plus B vector whole square plus Yeah. Great. So both of you are 50% correct. All that you need to do is take the numbers, this I का number, J का number, K का number, and you square it. Similarly, अगर इसका मुझे निकालना है, displacement का निकालना है, so what I'll do is, Ruti, can you tell me what should I write? 1 second. If it is displacement, then 11 square plus 11 square plus 15 square. शाबाश, very nice. तो 11 square plus 11 square plus 15 square. तो आपके पास फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा. एंड इफ यू वांट टू यूज दिस फर्स्ट फॉर्मूला, तो ये आ गया, बट ये cos ऑफ थीटा तो आपके पास नहीं है. हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव सेड? Yeah, correct. तो अगर मैं फर्स्ट फॉर्मूला लगाता हूं, तो फर्स्ट फॉर्मूला में
वर्क जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ मैग्नीट्यूड ऑफ डी इंटू कॉस थीटा। अब ये तो है बट ये नहीं है, तो फर्स्ट फॉर्मूला नहीं लगा पाऊंगा। हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? करेक्ट। What is the second option that I have? Second option that I have is second formula. Second formula जो मेरे पास है उसमें मुझे क्या बताया गया है? All that you need to do is ये i के साथ जो नंबर है उसको j के नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। Have I made myself clear? यहाँ पर जो नंबर है उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। i j के साथ जो नंबर है उसको ये वाले j के नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और k के साथ जो नंबर है उसको k वाले दूसरे k वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। Yeah. मिस रुचि, any doubt here? No, I did the same thing. Yeah. भाई सीधी कोई डाउट है? नहीं, wait. So the because what I want to tell you is कि पहला फॉर्मूला कब यूज किया जाता है और सेकंड फॉर्मूला कब यूज किया जाता है, सो दैट यू गाइस आर क्लियर कि कैसे करना है। तो इस केस में 4 इंटू 11 करना पड़ेगा, प्लस ये 1 इंटू 11 करना पड़ेगा, प्लस 3 इंटू 15 करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 44 प्लस 11 प्लस 15 3 45। तो 45 प्लस 44 बनता है 89, और 89 में 1 करेंगे तो 100 जूल आपका आंसर आ जाएगा। इज रुचि आर वी क्लियर? Yeah. ओके, नाउ नाउ लेट अस लुक एट द सेकंड क्वेश्चन, और इस सेकंड क्वेश्चन को अब दोबारा समझते हैं। Under a force of 10I minus 3J plus 6K Newton, a body of mass 5 kg is displaced from the position this to the position this. Calculate the work done. So, as is always advisable, you are always requested to make a at least rough photograph so that you have a understanding कि भाई हो क्या रहा है। So, question number 8, कोई particle मतलब of mass 5 kg, कोई body of mass 5 kg is displaced from this position 6i plus 5j minus k। तो आपने कोई फोर्स लगाई, ये बाजू आपने फोर्स लगाई, जो फोर्स का वेक्टर है दैट फोर्स का वेक्टर इज गिवन बाय 10i minus 3j plus 6k। तो वो मैंने कॉपी कर लिया, वो फोर्स लगी बॉडी पे, और जो बॉडी है जो मर्जी पाथ फॉलो करके यहां पर पहुंच गई। ये उसकी फाइनल डेस्टिनेशन है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, और ये जो फाइनल पोजीशन है इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ये है। श्रुति, हैव यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम? Yes. See, another thing that you need to understand is that class 12th में जो वेक्टर्स का चैप्टर है वो मैथ्स में आएगा। So for a math student it is always good कि आप क्लास 11th में ही फिजिक्स में ही वेक्टर अच्छी तरह समझ लीजिए, ताकि क्लास 12th का जो वेक्टर का मैथ्स है वो आपके सामने एकदम फर्स्ट क्लास हंसते खेलते निकल रहा है। Have I made myself clear? Yes. तो वो आपको ईज हो जाएगी बहुत, अगर आप थोड़ा सा इस पे टाइम इन्वेस्ट करेंगे 12th में ईजी हो जाएगा। पूरा चैप्टर है वेक्टर्स का, तो वो आपके मैथ्स के नंबर ऐसे हाथों हाथ निकल जाएंगे, उसमें आपको ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। नाउ अब इफ आई हैव टू कैलकुलेट द वर्क, the work would be given by the force dot displacement. Have I made myself clear? Which is the first formula? Yes, sir. No, which is the formula, and थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। लेट्स इग्नोर दिस फॉर अ व्हाइल। सो नाउ what do I have? Do I have the force vector? Yes, of course I have the force vector. This is the force vector. Do I have the displacement vector, Dhruti? What do you think? Displacement, now I'm not sure. Are there two displacements? Okay. No. Okay. By CB. देखिए डिस्प्लेसमेंट हुई क्या है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि क्या डिस्प्लेसमेंट हुई है। नेट डिस्प्लेसमेंट जो हुई है वो नेट डिस्प्लेसमेंट हुई है यहां से लेके यहां तक। हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? Okay. बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो हुई है ए बी वेक्टर। हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर और नॉट? Yes. वैसे भी समझ आ रहा है? जी। फिर से देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि दिस इज ओ ए and this is OB, and I have to calculate this AB vector. Have I made myself clear? Yes. Yes. Now, would the lectures that we had done on that triangular law of vector addition and the Okay. of vector addition, now they will come into play. अब आपको समझ आएगा। Now, just try to think कि OA vector जो है वो 6A plus 5J minus 3K है, और OB vector जो है वो 10I minus 2J plus 7K है। Can you guys think what will be AB vector?
by CB? Maybe subtracting, like OB minus OA. Okay, CB से पूछते हैं, CB बताइए. क्योंकि OA vector plus AB vector is equal to OB vector. So then OB vector minus OA Very vector good. will be AB. Yeah. Very good, very good. So both of you are correct. Both of you are absolutely fine. So whenever you have to do vector addition, the easiest way is आप इसको OA plus AB is equal to AB OB करके लिख दीजिए. So AB would be equal to OB minus OA. Am I making sense? Yes. This is the easiest way in which you can do vector addition and vector subtraction. This is the easiest way. फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको अगर आप इसको इस साइड चलेंगे तो आपका जो रिजल्टेंट है वो ये बाजू आएगा. Have I made myself clear? Yes. OB minus OA कर लीजिए. 10 minus 6 4i minus 2 minus 5 minus 7j plus 7 minus 3 is 10k. Have I made myself clear? भाई से भी समझ आया? Yes, sir. So now let me try to see the situation again. My force vector is 10i minus 3j plus 6k. Dhruti, is it correct? Yes. My displacement vector is 4i minus 7j plus 10k. Have I made myself clear? Yes. Now you guys are intelligent enough to calculate. बताइए जरा, कैलकुलेट करके बताइए क्या आंसर आएगा. So we don't have cos theta with us, so we'll have to use the second formula. Yes, very nice, very nice. तो आपके पास cos theta नहीं है, so the formula that you'll have to do is ये जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था. Have I made myself clear? Yes. जो सेकंड फॉर्मूला हमने यूज किया था जिसमें i को i, j को j, k को k से मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट इज ऑल दैट यू नीड टू डू. मैं फिर से आपको दिखाता हूँ. तो ये मेरे पास f है, ये मेरे पास d है और मुझे वर्क निकालना है. तो कैलकुलेट करके बताइए क्या आंसर आता है. Wait 1 second, sir. Let me just. Yeah. You guys will do it. मैं तो सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ. So both of you are correct. Simply क्या करना है, 10 into 4 40 minus 3 into minus 7 plus 21 6 into 10 60. So 6 8 12 121 and don't forget to put a joule. So now what we have understood is using these two formulas. ये वाला फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, सॉरी ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया. तो हमें ये आइडिया लग गया कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है. हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? Yes. देयर इज अनदर वे. ये जो क्वेश्चन बनता है, इस क्वेश्चन का, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका जो टॉपिक हम कर रहे हैं, इसका एक और क्वेश्चन बनता है. लेट अस ट्राई टू डू दैट. फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस. हैव यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, ध्रुति? The angle. Okay, wait 1 second. Can you try to do it by CP pick? So find the angle between the two vectors. Now this is a interesting question because in this question you'll have to simultaneously use both the formulas. How do I simultaneously use both the formulas? So I know that the dot product. So first formula that was given to me was that A dot B is equal to modulus of A into modulus of B into cos theta. Am I correct? Yes. The second formula that was given to me for finding the dot product was that just multiply the I with the I, the J with the J, and the K with the K. Am I correct? Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. वैसे भी समझ आ रहा है? जी. So on the left hand side, what I do is I use this formula. What? 2 into 3, 6, minus 4 into 1, minus 4, 6 into 2, plus 12. So 18 minus 4 is 14. Am I correct?
Yes. So on the left hand side, I'll get the answer as 14. वैसे भी समझ आ रहा है? Correct. So 6 minus 4 plus 12. So 18 minus 4 is 14. So I get 14. And on the right hand side, I find the magnitude of A, magnitude of B. What is the magnitude of A? 2 square plus 4 square plus 6 square is equal to 4 plus 16 plus 36. Have I made myself clear? Yes. So this will be 20 plus root 56 multiplied by magnitude of B vector, that is 9 plus 1 plus 4. So this will be root 14. And there is a cos theta here. Have I made myself clear? Yeah. वैसे भी समझ आ गया? जी. So cos theta is equal to 14 upon root 56 into root 14. Have I made myself clear? Yes. And then you calculate the value of theta and you'll get as 60 degree. Have I made myself clear? No, I did the same thing. I just didn't know how to solve 14 upon root 56 and root 14. अच्छा, अब यहाँ पर फंस गए? हाँ. Oh, okay. 14 upon वो root 56 into root 56 into root 14 can be written as root 56 into 14. Have I made myself clear? Correct. So 14 into 7 into 8 into 7 into 2. Have I made myself clear? Yes. ये 7 बेटा बाहर आ जाएगा. हाँ. ये 8 को 8 के भी फैक्टर्स Multiplied by 4. हाँ, correct. 4 into 2 कर लो, तो ये वाला 2 भी बाहर आ जाएगा और यहां से ये वाला 2 बाहर आ जाएगा. बेटा समझ आ रहा है? तो cos theta is equal to half, so theta is equal to 60 degree. Have I made myself clear? Yes. वैसे भी समझ आ गया? जी. So these are the few questions that we have done today. Next lecture we meet, we'll do few more questions and we will move on to the vector product. Is it okay? Yes, sir. Okay. So let's meet tomorrow, same time. I think I'll let you know the time, exact time, but I think 9 or 10 in the morning. Yeah. Okay. Okay. Chaliye. Thank you. Bye.